Whenever any legislation or ordinances come here, I always tell myself, we always tell ourselves, we need to look at this in a backdrop. And what is that backdrop? The backdrop is that in the 2019 Lok Sabha elections, the BJP government led by Narendra Modi won 303 seats in Lok Sabha with a 37% vote share. We remember that. At the same time, I would request this government to also remember that the states of Bengal, Punjab, Telangana, Andhra, Kerala, Jharkhand, Chhattisgarh, Delhi, Rajasthan rejected you. The Chief Minister, Andhra Pradesh, the Chief Ministers there are elected to run their states. You cannot cross the constitutional bar. You do your work, let them do their work. They are elected chief ministers. This is the E-bill we are passing. 8-letter word, E, epidemic. In 1975, there was another E word which somebody tried to cross. And then you know what happened. Sir, sinister provisions also in this bill. Of course, we want to take care of healthcare workers. Who doesn't want to? You thought about it in 2020. My state in West Bengal has the West Bengal Medicare Service Prevention of Violence and Damage to Property Act. This bill is 2009. What happens to this bill? You are poking your nose into my state. You are not elected there. Amendment 2A. Look at the original bill. Now the bill says you can search without any reason. Unqualified power to the central government. Bus, train, everything. Sir, this is an attempt to encroach the constitutional assigned functioning of the states. Don't use the excuse as the epidemic. Don't. Sir, look at the imposition of the fines. Yes, you can impose fines. We've got the bill already. But what are you trying to do? The states must be authorized to take the decisions at the level of the state. 7 lakh fine, 5 years, you cannot take away. BJP is now telling us, no politics. Of course, we also don't want politics. That's why we haven't given any amendments. In the true spirit of no politics, I'm not moving any amendments. I'm going to give the government some real suggestions. Let them listen to see whether my suggestions are making sense or no sense. Bengal has the Clinical Establishment Regulatory Commission headed by a High Court judge. 2017. It has capped private hospitals overcharging patients and all the tests. Why don't you consider this, sir? Health insurance. Your health insurance, like our health insurance in Bengal, is 10 lakhs of rupees. Only healthcare workers, ward boys, ward girls. Okay, good. What about the allied workers? In Bengal, the allied workers are also covered. 3, suggestion, put it in the rules. Psychological stress, mental health of doctors and healthcare workers, not covered. Take our suggestions and bring it into the into the rules. Sir, center is paying 60% for all the schemes. State is paying 40% for all the schemes. But when it comes to taking the credit, sir, the center wants to take all the credit. Ayushman Bharat. Hey Baba, you thought of Ayushman Bharat very good. Imitation is the best form of flattery. Bengal did Ayushman Bharat 2 years before you. Fully cashless, paperless. The card is not in the name of the spouse, man. It's in the name of the woman of the household. It includes the wife's parents. You can use it for private hospitals. You can go outside. So when I hear from the BJP, this we did first, this we did first. Are Baba, look at the states. Don't only look at Bengal. Look at all the other states. The only time you get interested in a state is when you want to manufacture a majority. You want to manufacture a majority in Madhya Pradesh, you get excited. In Karnataka, you get excited. In Manipur, you get excited. Sir, I've got time to go. I've got a clock. Sir, and of course, today, one of your most loyal state allies also told you to take a walk.
but that's another story, sir. Sir, the center cannot impose its will on the states. It's constitutionally wrong. We will have a debate next week on GST, and we'll tell you about it. Sir, in conclusion, since we are talking a lot about the British 1892, in conclusion, sir, there are only 3 parliamentary democracies in the world, only 3, which still have this ordinance Raj possible. India, Pakistan, Bangladesh. So the emergency ordinance route is dangerous. And I want to end, sir, yes, I want to end by something very interesting. Before I joined politics, I used to do quizzing once for my livelihood. Where did these ordinances actually come from? It's interesting. It comes from the Government of India Act 1935. That's the root of all these ordinances. And why? Because the Viceroy could pass anything he wants at any point. So the Viceroy and their attitude has gone, but the attitude of arrogance still remains with this BJP government. Thank you, sir. अभी कोविड के समय में इस एक्ट को जो अमेंडमेंट को लाने के साथ साथ हमने उस विषय को भी साइमल्टेनियसली जब एग्रेसिवली और परस्यू किया तो हमें 10 स्टेट्स के लगभग और सुझाव उसके अंदर प्राप्त हुए और अभी हमारे पास 14 स्टेट्स का जो नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट है उसको देश के सामने प्रस्तुत करने के संदर्भ में हमारे पास उनका इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी है। तो एक तो मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सभी संबंधित जो विषय हैं जो कि शायद एपिडेमिक्स एक्ट में ना कवर होते हों या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ना कवर होते हों, उन सब के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम नेशनल पब्लिक हेल्थ पर बहुत प्रोएक्टिवली एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा वो निश्चित रूप से सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ तक जो आनंद शर्मा जी ने अंत में सुझाव दिया, मैंने उस दिन जब जवाब दिया था कोविड की डिबेट पर तब भी बताया था कि जो हमारा अभी आने वाले समय के अंदर जो आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, जिसके लिए मैंने अपने जो स्टेटमेंट में भी जिक्र किया था और उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए की किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों पर व्यय होना है उसके बारे में जो योजना है उसके बारे में भी उल्लेख किया था। तो उसके अंतर्गत सारे देश के अंदर कम्युनिटी सर्वेलेंस से लेकर और जितने भी सर्वेलेंस के पैरामीटर्स हैं, इन्फेक्शन जो IDSP को स्ट्रेंथन करना है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इन्फेक्शस डिजीज़ के हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक लेवल पर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी बहुत सारी और रिलेटेड जो स्कीम्स हैं लैब्स के एक्सपेंशन के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। माननीय मंत्री जी, आग्रह है कि कृपया ब्रीफ हों। सर अभी कृपया कंक्लूड करें। सर 2 घंटे सब लोगों ने बोला है, मुझे आप कम से कम 5-10 मिनट तो दीजिए ना सर। आप जानते हैं दूसरा सदन भी चलना है। सर ठीक है सर, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो कहा गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चार्जिंग इत्यादि के बारे में, तो शायद भारत सरकार ने ही इसके बारे में आगे बढ़कर सारे स्टेट्स को गाइडलाइंस भी इशू की है, प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी मीटिंग्स की हैं और जो चार्जेस चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ के हों दूसरी चीज़ों के हों उनको सबको रेशनल करने के लिए जो है रेशनलाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सब प्रकार के सपोर्ट सिस्टम्स दिए हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसके बारे में पॉजिटिव काम भी किया है। कई लोगों ने आयुष्मान भारत और CGHS के रेट्स के साथ अपने रेट्स को सिंक्रोनाइज़ किया है। जो ड्रग्स की वैक्सीन्स, दूसरी जो PPEs और उन चीज़ों के जो ओवर चार्जिंग के बारे में, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में किया गया है, तो समय समय पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से ड्रग कंट्रोलर ने स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स के साथ मिलकर इस विषय पर कितनी सख्ती से एक्शंस लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस किए हैं। उनको सारे ड्रग कंपनीज़ को वेबसाइट पर सारी चीज़ें, सारी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बम्बई में, सूरत में आप जानते हैं कि जो लोग इस ब्लैक मार्केटिंग वगैरह में कुछ इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी ऑडिटिंग भी हुई है, इंस्पेक्शंस भी हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार मॉनिटरिंग के लिए हेल्पलाइन इत्यादि भी बनाई गई है।
कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको कि हम लोगों ने आशा वर्कर्स के बारे में कहा गया है। ये सारे माननीय मंत्री जी प्लीज आशा वर्कर्स ऑलरेडी इस सब के अंदर जो है डेड बॉडीज़ के बारे में भी सर गाइडलाइंस इशू की गई हैं। जो अतिरिक्त जो वेतन इत्यादि के बारे में कहा गया है, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो स्टेट्स को पर्याप्त मात्रा में उसके अंतर्गत भी, और जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में सर फंड्स भी दिए गए हैं उनको सैलरीज देने के लिए, और बहुत सारे स्टेट्स ने उसका हम लोगों को कंप्लायंस भी दिया है। मैंने उस दिन अपने जवाब में भी कहा था कि पीपीईज इत्यादि जिसके बारे में अभी भी लोगों ने चर्चा की है, इतनी मात्रा के अंदर पीपीईज और वेंटिलेटर्स और N95 मास्क स्टेट्स को दिए हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने तो हम लोगों को उनको रिसीव करने के लिए उनके पास स्थान नहीं है रखने का। इसके बारे में भी जो है बहुत सारी जो हमारे जो मेडन स्पीच दी गई उसके संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि माननीय मंत्री जी प्लीज समय का ध्यान रखिए सर, सिर्फ प्लीज 5 मिनट और सर, सिर्फ 5 मिनट। मेडन स्पीच के बारे में मुझे इतना केवल कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने विषम परिस्थितियों के बावजूद किस प्रकार से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं और स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं जिनका मैंने बहुत विस्तार से उस दिन उल्लेख किया था, वो सारा का सारा प्रस्तुत किया है। एक राष्ट्रीय नेता के एक ट्वीट के साथ साथ अगर इस देश को ये भी बताया जाता उस स्पीच में कि पिछले 9 महीने में कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पतालों के अंदर विज़िट करके दूसरे स्थानों पर कोरोना को देश में कंट्रोल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता ने क्या क्या किया, तो शायद वो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रासंगिक। माननीय मंत्री जी प्लीज खत्म करें आप सर प्लीज। जो अभी सर अब ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर कही गई हैं जिनका मैं समझता हूँ कि सर उल्लेख जवाब मैंने। माननीय मंत्री जी प्लीज खत्म करें। ठीक है सर, आप चाहते हैं कि मैं नहीं सर, आप भी जानते हैं। मैं ठीक है सर, मैं अपनी बात को ये एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। 14 अगस्त को मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में गया था। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, और जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर के सामने ले जाकर खड़ा किया और एक माइक दिया। उस तस्वीर पे भारत का नक्शा था और हर स्टेट के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो नर्सिस थे, चाहे वो दूसरे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी थे, उनकी तस्वीर के साथ उसको पूरे देश के नक्शे के ऊपर लगाया था। मेरी आंखों से जो आंसू हैं वो डबडबाने लगे, वातावरण बहुत इमोशनल हो गया, और 245 ऐसे लोगों की तस्वीर उन्होंने हमें दिखाई। अभी यहाँ पर ये सवाल रखा गया है कि इनकी संख्या के बारे में सरकार के। माननीय मंत्री जी प्लीज। ये हम जानते हैं कि सारे देश में इस प्रकार की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है हर रोज़ पैदा हो रही है, इसके आंकड़े स्टेट्स के पास होते हैं, और स्टेट से जो कुछ हमें जानकारी देता है किसी भी समय पर इसकी एग्जैक्ट जानकारी जो है, अगर हमने मान लीजिए कोई एग्जैक्ट नंबर हम नई मुंह से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इस विषय के लिए संवेदनशील नहीं है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।